Hey guys, so in this video we are going to cover the Union Territories of the India. So as we all know that कि इंडिया में जो है टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है. ओके, सो अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. तो जो ये स्टेट्स है ना 28, दे पार्टिसिपेट इन द इंडियाज फेडरल सिस्टम. इसका मतलब कि दे शेयर द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. सो वहां पे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कि दे आर इन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया. बट जो यूटीज है ना, दे फॉल डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो यहाँ पे पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है. तो इसका मतलब कि यू कैन से दैट एज फार एज स्टेट्स इज कंसर्न, तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है. बट एज फार एज द यूटीज आर कंसर्न, तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी है, right? So this centrally administered regions, that is UT, they represent the exception to the India's federal structure. Okay, so establishing a unitary relationship between the union territories and the New Delhi, that is central government. So let's see now how the evaluation of the UTs has occurred historically. So initially पहले क्या था, ब्रिटिश एरा था. तब कुछ यूटीज को दे वर कंस्टिट्यूटेड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन 1874, जिनको बाद में चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला गया. ओके, सो इन 1874 दे वर कंस्टिट्यूटेड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड देन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, दे वर प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ पार्ट सी एंड पार्ट डी स्टेट्स. ओके, सो पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स में इनको रखा गया. फिर जैसे ही सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हुआ, तब उनको यूटी में कंस्टिट्यूट किया गया था. ओके, एंड देन लेटर डेवलपमेंट्स में क्या हुआ, तो कुछ टेरिटरीज थी ना, वो एलिवेट होके स्टेटहुड बन गई. ओके, तो उनको स्टेट का दर्जा दिया गया. एंड अदर दैट वर एक्वायर्ड फ्रॉम द पोर्टुगीज, दैट इज दमन दीव दादरा नगर हवेली, एंड फ्रेंच, दैट इज पुडुचेरी, दे वर कंस्टिट्यूटेड एज द यूटीज. तो ये पूरा इनका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है. Now let's see which are the current duties of India. So one is Andaman Nicobar Island. Okay, so ये 1956 में बनाई गई थी. It is in the Bay of Bengal. Then Lakshadweep, वो भी 1956 में बनाई गई थी. Okay, it is in the Arabian Sea. फिर दिल्ली, दिल्ली को एनसीटी बोला गया 1992 से. ओके, देन जम्मू कश्मीर 2019. ओके, सो बनाया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया था, right? Initially, it was the state which was reorganized as the UT after abrogation of the Article 370. Other UTs are like दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. इन दोनों को मर्ज किया गया 2020 में. फिर पुडुचेरी acquired from the French, and then Chandigarh in 1966. Now let's see which are the UTs that have been elevated to the statehood. Okay, so one is Himachal Pradesh. Okay, Himachal Pradesh, then Manipur and Tripura. Okay, they both were the princely states that becomes UT after independence. Okay, before elevation to the statehood. Then Mizoram. Okay, it was a part of the Assam, and then it becomes a UT and then again state. Arunachal Pradesh, right? It was known as a Northeast Frontier Agency till 1972 and become UT. Goa was acquired from the Portuguese. Okay, and then it remained UT for 26 years. So you can just remember that, like Gar and then Mamitri. Okay, Mamitri and Gar. So Goa, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Tripura, and one is Himachal Pradesh, right? So that you remember, or Gar, something Garwals. So Gar and Mamitri. Okay. So the transition from the UT to the status. Okay, it typically reflects the increased political autonomy. Obviously, power ज़्यादा आएगा, and administrative self-governance under the India's federal structure. So, what are the reasons for creation of the UTs? कौन से reasons के कारण UTs बनाई गई थी? So, one is the political and administrative reasons. Okay, so दिल्ली जैसे है. Okay, so दिल्ली is a seat of the central government, that is national capital. So, इसके कारण चंडीगढ़ function as the joint capital of पंजाब and हरियाणा. So, इसके कारण इनको UT बनाई गई. देन कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, जैसे फ्रेंच से ली गई थी.
पुडुचेरी, पोर्टुगीज से दमन एंड दीव लिया गया था। सो उनका कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस था, तो इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई थी। सो अनदर इज स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाइक अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफेंस ऑपरेशन होते हैं, तो फॉर दैट रीजंस दे वर केप्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। Then special treatment, like certain areas initially require the central administration to develop the backward regions and protect tribal population before achieving the statehoods। तो वही जो मामित्री हमने देखा ना, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो इसके कारण बनाए गए थे। So now if you see the administrative structure of the UTs, see there is no uniformity in the administrative structure of the all UTs। ओके, जैसे स्टेट में हम देख रहे हैं ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी है, तो वैसे यूटी में नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देखें तो यूटीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूटी। ओके, स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। ओके, एंड ही गवर्न थ्रू द अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेशन हु सर्व एज द प्रेसिडेंशियल एजेंट्स। तो जो ये एलजी होते हैं ना, दे आर द एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दे आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ओके, एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोला जाता है? दे कॉल्ड एज अ एलजी और सिंपली एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो अगर आप इंडिया देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज माय इंडिया। ओके, सो यहां से अगर देखोगे व्हाट इट इज, जम्मू कश्मीर, देन दिल्ली, देन पुडुचेरी, राइट, एंड देन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो जस्ट ये लाइन आप देखो, ये लाइन जो है ना, सो ये पूरी लाइन जो है, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर कि इसमें एलजी कहा जाता है, राइट। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर। बाकी की जो यूटीज है ना, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, राइट। सो नाउ इफ यू सी द लेजिस्लेटिव पावर्स, ओके, सो दिल्ली जो है, पुडुचेरी जो है एंड जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर देयर। दे हैव देयर ओन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड। ओके, अदर टेरिटरीज लेक द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द यूटीज, while president may issue the regulation for peace, progress and governance। This is very important। They have their judicial setup also, like दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है ना, they have their own high courts। दिल्ली जम्मू कश्मीर के पास खुद की हाई कोर्ट है, while other UTs they fall under the jurisdiction of adjacent state high courts। जैसे अगर आप देखोगे पुडुचेरी, so पुडुचेरी is under the तमिलनाडु हाई कोर्ट, right? Okay, that is मद्रास हाई कोर्ट। ओके, अगर आप चंडीगढ़ देखोगे तो चंडीगढ़ इज इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगर आप अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप है, वो केरला हाई कोर्ट के अंतर्गत है। और अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स को देखोगे तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट्स के अंतर्गत है। ओके, सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल रिलेशंस, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द दिल्ली। तो दिल्ली को क्या किया गया था? 1991 में दिल्ली से उसको डेजिग्नेटेड किया गया था एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, ये सब हुआ था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, एंड इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू द दिल्ली। ओके, एंड रीडेजिग्नेट इट एज अ एनसीटी। ओके, और उसके हेड को एलजी बोला गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, देन लेजिस्लेटिव असेंबली अगर हम देखें, सो दिल्ली में 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ओके, विथ लिमिटेड पावर्स ऑन द स्टेट लिस्ट मैटर्स। ओके, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है, दैट इज 1/10। ओके, 1/10 मीन्स 70 है तो 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स। ओके, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। दिल्ली की जो असेंबली है ना, वो स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है एक्सेप्ट 3 थिंग्स, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। तो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड पे अगर लॉ बनाना हो, एग्जीक्यूटिव एक्शंस करनी हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। ओके, बट कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट हो रहा है एलजी के बीच और मिनिस्टर्स के बीच, तो वो मैटर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, एंड प्रेसिडेंट कैन इम्पोज हिज रूल, दैट इज प्रेसिडेंट इमरजेंसी, इफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स। नाउ इफ यू सी द कंपैरिजन बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूटीज, तो क्या क्या है? तो जैसे सेंटर के साथ रिलेशनशिप देखें तो फेडरल का है और यहाँ पे यूनिटरी है, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ यहाँ पे है, ये तो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल है। ऑटोनॉमी देखें तो हाँ इसके पास है, इसके पास लिमिटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देखें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे हमने देखा ना, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में और पौंडीचेरी में है,
लेजिस्लेटिव असेंबलीज, बाकी जगह नहीं है। एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ पे गवर्नर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी है जो प्रेसिडेंट का एजेंट है। लेजिस्लेटिव पावर्स देखें तो पार्लियामेंट कैन नॉट नॉर्मली लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट, यहाँ पे पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द एनी सब्जेक्ट, राइट। सो यूटीज की एक एडवाइजरी कमिटीज भी होती हैं फॉर डिस्कशन ऑन द जनरल इश्यूज रिलेटिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमिटी होती है ना, दैट इज चेयर बाय होम मिनिस्टर एट द सेंट्रल लेवल, वेल द एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजरी कमिटी वो कौन चेयर करेगा, तो वहां का एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द कंसर्न यूटी। ओके, और ये पूरी यूटी, यूटी में जो सिलेक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटर का या एलजी का, यूटीज के इश्यूज का गवर्न करना, यूटीज के फाइनेंस को गवर्न करना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, रिमेंबर दैट। So these are the questions on the UT. So you just pause the video and solve the questions by yourself. Okay. So thank you for watching the video. So if you like the video, please subscribe the channel and share it as much as possible. So thank you.